Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parabhani, Maharashtra, India. So, today's point of discussion will be the difference between wrongful restraint and wrongful confinement. These are the two offenses under BNS Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which was previously existed under Indian Penal Code. So what exactly the difference between these two offenses? We will discuss in this particular lecture. तो wrongful restraint क्या है और wrongful confinement क्या है, ये दोनों आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे और दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, wrongful restraint and wrongful confinement and what exactly the difference between these two offenses is there. So before discussing the difference between wrongful restraint and wrongful confinement, we have to discuss the introduction of these two offenses, the definition of these two offenses. But before discussing the definition, we will discuss the provision of constitution relating to the concept of wrongful restraint. So the Constitution of India confers the right to freedom of movement to every person throughout the territory of India and guarantees personal liberty under Article 19 and under Article 21. So Article 19 of Indian Constitution guarantees the fundamental freedoms and one of the fundamental freedom is right to movement. तो हर एक पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने राइट टू मूवमेंट दिया है, मतलब कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पर भी आ जा सकता है और उसके मूवमेंट को जो भी रोकेगा इट अमाउंट्स टू अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19. तो ये फंडामेंटल राइट है पर्सन का, राइट टू मूवमेंट, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, रोकेगा तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा. एज वेल एज इट इज अ पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, which deals with the right to life and personal liberty. So it is nothing but a constitutional right of a person. Right to movement is a constitutional right of a person, and these two offenses, wrongful restraint and wrongful confinement, are against the fundamental right which guarantees the right to movement. जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल में राइट टू मूवमेंट का है, इसी को कर्टेल करते हैं ये दो ऑफेंसेस, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. तो सबसे पहले आगे हम डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम दोनों की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, उसके बाद हम डिफरेंस की तरफ जाएंगे. तो सेक्शन 126 सब क्लॉज 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डील्स विद whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person. So whenever any person voluntarily obstruct another person from proceeding in any direction in which that person having a right to movement, that person committed an offense of wrongful restraint. Suppose if I curtail the movement of any person, if you are having a right to proceed in a certain direction and if I restrain you from moving further, I have committed the offense of wrongful restraint. बात ध्यान में रखिए कि wrongful restraint होता कब है कि मेरा अगर किसी रास्ते को किसी डायरेक्शन में जाने का मेरा राइट है, अधिकार है मेरा, और मुझे कोई उस रास्ते को यूज करने से रोक रहा है, मेरे मूवमेंट को वो रोक रहा है, मुझे स्टॉप कर रहा है, इसका मतलब वो पर्सन ने रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस किया. या मैं आप किसी रास्ते से जा रहे हो और मैं आपको रोकता हूं उस रास्ते में, उस रास्ते से जाने नहीं दे रहा हूं मैं आपको, तो मैंने रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस किया. तो मतलब अगर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को हमको समझना है तो एक पर्सन को राइट टू प्रोसीडिंग वाला राइट होना चाहिए, यूज करने का राइट टू मूवमेंट का राइट होना उसको जरूरी है. दूसरा ये कि किसी पर्सन ने उसके मूवमेंट को रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करना जरूरी है, उसके मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना जरूरी है,
अगर ऐसा होता है तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को ऑफेंस कमिट हुआ ऐसा माना जाएगा। तो ये था रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की डेफिनेशन सेक्शन 126 सब क्लॉज 1 में। अब हम मूव करते हैं डेफिनेशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की तरफ। सेक्शन 127 सब क्लॉज 1 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 deals with the offense of wrongful confinement. So whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limit is said wrongfully to confine that person. Now, if any person wrongfully restrained another person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond a certain circumscribing limit. Suppose if I curtail your movement beyond a certain circumscribing limit, I curtail your movement within a particular limit, circumscribing limit. अगर मैं आपके मूवमेंट को अगर एक पर्टिकुलर लिमिट में रोक रहा हूं, वो हो सकता है एक रूम, अगर मैंने आपको रूम में बंद कर दिया, इट इज अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मैंने अगर एक बड़ी बिल्डिंग में आपको बंद कर दिया, इट इज अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। द वर्ड यूज्ड अंडर सेक्शन 127 इज बियॉन्ड अ सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट की बात हो रही है। वो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट एक रूम भी हो सकता है, वो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट एक बिल्डिंग भी हो सकती है, वो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट एक एरिया भी हो सकता है, वो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट एक शहर भी हो सकता है, वो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट एक स्टेट भी हो सकता है। तो दिस इज द सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की मूवमेंट को एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में सीमित कर रहा है तो उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस किया ऐसा माना जाएगा। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या है? एक पर्सन का राइट है मूवमेंट करने का, उसको अगर वो पर्सन रोक रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट नहीं है, सिर्फ रास्ता यूज कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसके डायरेक्शन को रोक रहा है, ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कब हो जाएगा? कि अगर उसके मूवमेंट को एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, चारों तरफ से उसके मूवमेंट को कर्टेल कर दिया गया है, अब वो अपने लिबर्टी के हिसाब से आ जा नहीं सक रहा है, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। तो ये दो सेक्शन थे, सेक्शन 126, 127 जो हमने डिस्कस किया। अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन wrongful restraint and wrongful confinement is there. So the first difference between wrongful restraint and wrongful confinement is wrongful restraint, it is the genus. It is a wider term and includes several types of restraint under it. So wrongful restraint is a wider term and it includes several types of restraint under it. तो ये जो wrongful restraint है ये wider term है और सेवरल टाइप्स ऑफ रेस्ट्रेंट इसमें कवर होते हैं। आप रास्ता यूज कर रहे हो, मैं आपको रोक रहा हूं, ये भी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो गया। आप कहीं पर जाना चाहते हैं, मैं आपको रोक रहा हूं, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो गया। आप कोई काम करना चाहते हैं, मैं आपको काम करने नहीं दे रहा हूं, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो सकता है। तो सेवरल टाइप्स ऑफ रेस्ट्रेंट इज कवर्ड अंडर द रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। बट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है? इट इज अ स्पीसीज ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, दैट इज अ टाइप ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। Wrongful confinement is nothing but a species of wrongful restraint. So it is a type of wrongful restraint. मतलब wider term में wrongful restraint है, उसी में से एक wrongful confinement आता है। मतलब wrongful confinement बेसिकली wrongful restraint है, लेकिन wrongful restraint wrongful confinement में कन्वर्ट कब होगा? अगर किसी पर्सन के मूवमेंट को एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में रोका जा रहा है तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कन्वर्ट हो जाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। तो ये पहला डिफरेंस था रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज देयर। इन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड। Wrongful restraint is nothing but a prevention of a person from proceeding in a certain direction in which such a person has a right to proceed. एक आधे पर्सन का किसी डायरेक्शन में प्रोसीड करने का, जाने का उसका राइट है और दूसरा पर्सन उसके इस राइट को रोक रहा है, उसको रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड अ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। अब ये रास्ता है, फॉर एग्जांपल ये रास्ता यूज करने का मेरा राइट है और मैं वो प्रोसीड कर रहा हूं रास्ते पर, आपने मेरे रास्ते को रोका, ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है? इट कीप्स अ पर्सन विद इन अ सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कीप अ पर्सन विद इन अ सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पर्सन के सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में रखता है पर्सन को।
मतलब कोई भी रास्ता नहीं है अब उसको। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में क्या हो सकता है, अगर आपने मेरा ये रास्ता रोका तो मैं दूसरे रास्ते से जा सकता हूं, ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हुआ। आपने मेरा रास्ता रोका लेकिन मैं दूसरे रास्ते से चले गया, आप रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए लायबल हो। लेकिन आपने मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में मुझे रोक कर रखा आपने। मुझे आप किधर भी, चारों तरफ से मैं बंद हूं, चाहे वो एक रूम में हो, चाहे एक बिल्डिंग में हो, चाहे एक शहर में हो, मैं चारों तरफ से अगर बंद हूं तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। सो इट कीप्स अ पर्सन विद इन अ सर्टन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट there is only a partial suspension of one's liberty. In wrongful restraint, liberty is partially suspended. लिबर्टी पार्शियली सस्पेंड हुई। मैंने आपको बताया ना कि मैं इस आपके तरफ आ रहा हूं, आपने मुझे रोका, मैं वापस जा सकता हूं या मैं दूसरे रास्ते से जा सकता हूं। मेरी लिबर्टी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में पार्शियली सस्पेंड हो रही है, टोटल नहीं। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या है, देयर इज अ टोटल सस्पेंशन ऑफ लिबर्टी बियॉन्ड अ सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, बट इन अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देयर इज अ टोटल रेस्ट्रेंट। मतलब टोटल मेरी लिबर्टी सस्पेंड हो रही है। मुझे ना तो सीधा जाना है, ना तो पीछे जाने का रास्ता है, ना तो दाएं ना तो बाएं, किधर भी नहीं। चारों तरफ से मैं घिर चुका हूं, चारों तरफ से मेरे मूवमेंट को बंद कर दिया गया है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट it is not a very serious offense and is punishable with lesser punishment. Wrongful restraint is not a serious offense and the punishment is very less. तो wrongful restraint में lesser punishment है, punishment severe नहीं है. But comparing to the wrongful restraint, wrongful confinement is having a serious punishment. wrongful confinement में wrongful restraint से ज्यादा सजा के प्रोविजन है। Last point of difference between wrongful restraint and wrongful confinement is that in wrongful restraint, imprisonment which may extend to 1 month or fine which may extend to 5,000 rupees. So in wrongful restraint, the punishment is a 1 month imprisonment and fine which may extend to 5,000 rupees. तो एक महीने की सजा, 5,000 रुपए का फाइन, दोनों में से एक हो सकता है या दोनों भी हो सकता है in case of a wrongful restraint. But in case of a wrongful confinement, the imprisonment which may extend to 1 year and fine which may extend to 5,000 rupees or with both. wrongful confinement में 1 साल तक की सजा हो सकती है या 5,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है या दोनों भी कोर्ट इंपोज कर सकता है। तो ये wrongful imprisonment की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की ये सजा हो गई है। तो यही कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।